Dear brothers and sisters, we greet you all in the matchless name of our loving Savior, Lord Jesus Christ, and with you all Christmas. प्रिय भाइयों बहनों, आज हम सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह का नाम से और क्रिसमस का और फेस्टिवल का कारण से आप सब लोगों को और परमेश्वर का नाम से शुभ करते और ये संदेश आप लोग को दे रहा है. In the days we have been hearing about the birth of Lord Jesus Christ. ये जो दिन है, हम कई दिन से प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में वचन सुनते जा रहा है. Actually, the December is very important for all the Christians in the world. ये जो संसार में महीना दिसंबर जो है वो बहुत ही अच्छा है, सब लोगों को भी बहुत ही और उसका यूज़ बहुत है. So that's why we have to see the mystery of the Christmas today. इसलिए आज हम परमेश्वर का जन्म के बारे में हम थोड़ा देर हम उसको ध्यान करने के लिए जा रहा है. And before that, shall we pray? उसके पहले हम प्रार्थना करें और वचन को और स्टार्ट करेगा. Our loving Heavenly Father, हमारा प्रेमी अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, we thank Thee once again Thou hast given this precious time to meditate Thy word. और एक बार आपने हमको मौका दिया तेरे वचन को ध्यान करने के लिए. Lord, we pray that Thou may anoint Thy servant in giving Thy word and also interpreting Thy word. हे परमेश्वर पिता, तेरे वचन को देने में और उसको तर्जुमा करने में भी आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं. Loving Father, we pray that Thou may speak through Thy servant. हे पिता, तेरे दास को दर्द हमसे बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते हैं. By faith we are binding all the powers of darkness in Thy mighty name. हमारा प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार का अदृश्य शक्ति को हम बांध देते हैं प्रभु. We bring under the headship and lordship of Lord Jesus Christ. हम सब आपका सिर का और नीचे हम लाते हैं, आपका अधिकार को मानते हैं प्रभु. That's why, Lord, we pray for all the people who are listening this message from different parts of the world, India and abroad. Wherever they are listening this message, Thou may be able to speak to them, Lord. हे परमेश्वर पिता, जो लोग ने इस वचन को और भारत देश में और भिन्न भिन्न देश में और ये वचन सुन रहा है, उन पे आप बातचीत करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता. We commit every one of you to your loving hands, care and protection. हम सब लोगों को तेरे हाथ में सौंप देते हुए we pray in the name of Lord Jesus our Savior. हमारे प्रभु यीशु के मसीह नाम से हम मांगते हैं प्रभु. Amen. Amen. So, brothers and sisters, the Christmas today you will find it's a great festival. Throughout the world, people are celebrating this Christmas. इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज हम देखते हैं सारे दुनिया में ये क्रिसमस मानते जा रहा है. But we must know the purpose for which the Lord Jesus Christ came to this world. हम ये जानना है प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया है. So that's why it's very important, every one of us, to know the truth of His coming or His birthday. इसलिए हमारा सब लोग में ये जो गुप्त बात जो है हम सब लोग को जानना है और ग्रहण करना है. Brothers and sisters, actually many people are enjoying in the name of Jesus Christ this world. प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत लोग आज खुशी मना रहा है. It's very good to have that kind of experience. इस बात के लिए अब खुशी मनाना कोई गलत नहीं है. But with the experience for which the Lord has come, has fulfilled in your life, then you can enjoy whatever you like it. जिस उद्देश्य ने परमेश्वर ने दुनिया में आया, यदि उद्देश्य आपका जीवन में पूरा हुआ, तब आप खुशी कर सकते, आनंद कर सकते. So that's why, brothers and sisters, today we are going to see why
the great God, the Almighty God, the wonder-working God, such a God from heaven to this earth, why He came down? हमारा परमेश्वर जो महिमा में रहते और सर्वशक्तिमान और स्वर्ग में रहते, इतना परमेश्वर क्यों दुनिया में और इस पृथ्वी को ऊपर आया? Yes, there is a great mystery behind it. इसलिए उसके पीछे बहुत प्रकार का गुप्त बात है. तो we will see very shortly why the Lord was born in this world. इसलिए हम बहुत संक्षिप्त रूप से परमेश्वर ने इस दुनिया में क्यों पैदा हुआ थोड़ा हम उसको मनन करेगा. So first of all we see the book of Matthew and chapter 5 we will see. हम यहाँ पे देख सकते हैं परमेश्वर का और वचन में मत्ती सुसमाचार और 5 अध्याय में और 17 वचन में हम देख सकते हैं. There it is written, the Lord said, I came to this world to fulfill the law which was spoken by the prophets in the Old Testament. तो इसलिए यहाँ पर लिखा है, मैं इसलिए आया हूँ पुराना नियम में जो नबी लोग ने मेरे बारे में जो कुछ उन्होंने कहा उस बात को पूरा करने के लिए मैंने इस दुनिया में पैदा हुआ. So that's why, brothers and sisters, the very first thing is why the Lord came to this world, because to fulfill the law which the Lord gave to Moses. इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में पैदा होने के लिए पहले कारण ये हुआ, और पुराना नियम में परमेश्वर ने मूसा को दिया एक नीति और शास्त्र को, उस शास्त्र का फुलफिल और पूरा करने के लिए और परमेश्वर ने इस दुनिया में आया, नीति वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर दुनिया में आया. Now let us see what does it mean. इसका मतलब क्या हो सकता है? So in the Old Testament you will find about 39 books are there. और हम देख सकते हैं पुराना नियम में और 39 और पुस्तक को हम देख सकते हैं. But the law was given to Moses in the book of Exodus. हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में निर्गमन किताब में मूसा को परमेश्वर ने और व्यवस्था विवरण को उन्होंने दिया है. Dear brothers and sisters, according to this law, in those days when the people commit sin, they will be punished, they will be judged, and God will give eternal punishment. इसलिए प्रिय भाई बहनों, और हम देख सकते हैं पुराना नियम के अनुसार उस समय में जो लोग पाप करते हैं परमेश्वर को न्याय करेगा और उसका अनुसार उनको शिक्षा भी पाएगा, उस रीति से सब लोगों को परमेश्वर करेगा. So for that, in the Old Testament, they have to offer different kinds of sacrifice in order to for the remission of their sins and trespasses. इसलिए प्रिय भाई बहनों, पुराना नियम में जो पाप का उन्होंने किया उस पाप को क्षमा होने के लिए उन लोग ने कई प्रकार का बलिदान और कई प्रकार का सैक्रिफाइसेस और जैसा घोड़ा और जैसा हम देख सकते हैं मेमने को और कई रुपए से कई पक्षियों को हम देख सकते हैं, इसको बलिदान करना पड़ता. इसलिए परमेश्वर का और व्यवस्था विवरण बताते हैं. So that's why, brothers and sisters, if any man commits sin and if he offered any that kind of a sacrifice, then his sin will be forgiven. इसलिए प्रिय भाई बहनों, पुराना नियम के अनुसार जिन्होंने जो पाप किया उस पाप का कारण से उन्होंने इस रीत से बलिदान किया तो उनका पाप क्षमा होता है. So that's why the Lord Jesus Christ came to this world and to fulfill the law. इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए दुनिया में आया ताकि जो व्यवस्था विवरण उन्होंने दिया उस व्यवस्था विवरण को पूरा करने के लिए वो दुनिया में आया है. That's why, brothers and sisters, today
And if you accept Lord Jesus Christ as your personal Savior, and you need not to fulfill all these sacrifices. अगर आज प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण करेगा और विश्वास करेगा और पश्चाताप करेगा, पाप को कबूल करेगा, आपको इस रीति से पुराना नियम के अनुसार और व्यवस्था विवरण के अनुसार आपको कोई जरूरी नहीं बलिदान करने के लिए. That's why the Lord Jesus Christ came to this world to fulfill the law. इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह दुनिया इसमें इसलिए आया ताकि उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए. तो इसलिए that's why today all people are liberated from the law. इसलिए आज सारे दुनिया में कोई भी इंसान ने इस व्यवस्था विरुद्ध को छुटकारा पाया है. So many people are not believing this in Israel countries even today. आज हम देखते हैं इज़राइल देश में भी बहुत लोग इस बात को लोगों नहीं विश्वास कर रहा है. That's why brothers and sisters, once again we are telling you. So we need not to do any kind of sacrifices. We need not to do any meditations. We need not to do any kind of the worldly things for the forgiveness of our sins. इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमारा पाप को क्षमा करने के लिए इस दुनिया में कोई बलिदान करने की जरूरी नहीं है. कोई किसी रूप से किसी का पूजा और इस रिश्ते कुछ भी करने के लिए कोई जरूरी नहीं है. Because the Lord Jesus Christ, He died on the cross of Calvary and He shed His blood for every one of us. Whoever comes to Him, He is forgiving everyone. इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस कारण से आया, सारे पाप के लिए अपना जीवन देने के लिए आया और इसलिए हमको छुटकारा पाया है. This is the first thing why the Lord came to this world as a small child through the womb of Mary in the city of Bethlehem. इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमारे प्रभु और स्वर्ग को छोड़कर और मरियम को और उनके गर्भ का द्वारा एक बच्चे का समान पैदा इसलिए आया ताकि अभी व्यवस्था विवरण का उनका जो अधिकार हमारा ऊपर नहीं कर सकते और उसका अनुसार हम करने का कोई जरूरी नहीं है. तो ये है पहले बात, हम विश्वास करना पड़ेगा. और दूसरे बात को देखता हूँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्यों आया है. हम देखते हैं मत्ती गॉस्पेल, मत्ती सुसमाचार, और हम यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा अध्याय पहले अध्याय में और 21 वर्ष, मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय और 21 वचन में हम देख सकते हैं. तो there it is written, and you will conceive a child, he will save his people from all kinds of sins, therefore his name will be Jesus. This is the second purpose why the Lord born in this world and in Bethlehem. Bethlehem में परमेश्वर ने क्यों पैदा हुआ, ये दूसरा रीजन है. ये क्या है? What is this? Here it is written, He will forgive all kinds of people's sins. So He is called a Savior of the world. That means, brothers and sisters, so all the world people are committing sins, there is no salvation for them. इसलिए प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जितना लोग हैं सब लोग पाप करते जा रहा, इसलिए उनको उद्धार नहीं है. That's why to give this kind of salvation, He came down to this world. इस उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में आया है. So what is the meaning of salvation? और ये जो उद्धार का मतलब क्या हो सकता है? Romans chapter 3 and verse 23 says, all have sinned and come short of glory of God. रोमन किताब में और तीसरा अध्याय में और 23 वचन में ये बात लिखा है, सब ने पाप किया, पाप का मजदूरी मृत्यु है. तो that's why everybody is committing sin. इसलिए हर एक इंसान ने पाप किया है. तो the sin through our thoughts, through our talks, through our sights, through our deeds, through our places, through our friendship,
all kinds of various ways we commit sins. इसलिए प्रिय भाई बहनों, जो अपने जो पाप करते हैं, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, विचार को द्वारा, काम करने के द्वारा और हमारे सारे साथियों के लोगों के द्वारा दुनिया में कई कई रीति से हम पाप करते हैं. But the Bible says, Romans chapter 6 and verse 23 says, रोमियो का किताब में और 6 में 23 वचन में इस बात लिखा है, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. यहाँ पे ये बात लिखा है, जो पाप किया, पाप का मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर ने विश्वास करने से वो आनंद पाएगा और वो जीवन, अनंत जीवन वो पाएगा. So that's why, brothers and sisters, Jesus was born to remove our sin from our life, from our thoughts, from our sides, from our deeds, any kind of sin. इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह इसलिए पैदा हुआ, हमने जितना पाप भी किया, इस सारे पाप को छुटकारा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दिया. और because of this sin, what will happen? We will be judged by God. After that, what will happen? He will give the punishment. After that, what will happen? Then he will send to eternal hellfire. इसलिए प्रिय भाई बहनों, जिन्होंने पाप किया इस दुनिया में, वो पाप का कारण से परमेश्वर को न्याय करेगा. न्याय के बाद में उनको हमेशा के लिए नरक में भेजना पड़ेगा. That's why he is the savior of the world. इसलिए उनको ये उद्धारकर्ता करके क्यों नाम रखा है? तो प्रिय भाई बहनों, तो उन्होंने अपने को और नरक से और आग का भट्टी से और परमेश्वर न्याय से अपने को उद्धार किया, अपने को रक्षा किया, अपने को से दूर कर लिया. इसलिए प्रभु यीशु मसीह का नाम और उद्धार करता है. दिस इज द सेकंड रीजन व्हाई द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट केम टू दिस वर्ल्ड. ये जो है दूसरी बात, परमेश्वर ने क्यों दुनिया में आया. हम तीसरा बात को देख सकते हैं उसे अध्याय में, मत्ती सुसमाचार और दूसरे अध्याय, पहले अध्याय में हम देख सकते हैं और 22 वचन में, और यहाँ पे लिखा है His name will be given as Emmanuel. हम एक देख सकते हैं उनका नाम इम्मानुएल करके और उनको बुलाता है. द मीनिंग ऑफ इम्मानुएल इज द ऑलमाइटी गॉड इज विथ अस. तो इम्मानुएल का मतलब ये होता है परमेश्वर हमारा साथ रहते हैं. दैट्स व्हाई brothers and sisters, why that word is given here? प्रिय भाई बहनों, इस रीति से ये नाम क्यों दिया गया है? So the Bible says the Almighty God with a sinful person in this world. परमेश्वर ने, इतना परमेश्वर ने एक पापी का मनुष्य साथ में रहना का इच्छा होता है. That is the reason he left the glory of God, the kingdom of his angels. He left so many things in the heaven, came down to this world. इस कारण से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर, देवदूत को छोड़कर, महिमा को छोड़कर और इस दुनिया में आया है. Why it is written like that? Why ऐसा क्यों लिखा है? In this world there are two kinds of people. ये दुनिया में दो प्रकार का लोग हैं. The first one are called they're wise people or educated people. The second one are called uneducated people or poor people. हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहले जो लोग हैं और अच्छे से पढ़ा लिखा लोग और अच्छे से पैसा लोग हैं. दूसरे लोग अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं. तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, और दो प्रकार के लोग दुनिया में हम देख सकते हैं. But at the same time, the rich people will never think about the heaven or the God and His creation or His power, because they used to depend on their own power or money or anything else. इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये जो राइस लोग जो है, धनवान जो लोग हैं, परमेश्वर को विश्वास नहीं करते. अपना शक्ति का ऊपर, अपने ज्ञान का ऊपर, अपना बल का ऊपर, और इस रीति से उन्होंने वो उसको ऊपर निर्भय होता है. But the poor people, the downtrodden people,
the people who are left in this world as a poor and poorest of the world, who will be with them? Who will go with them? Who will comfort them? Who will console them? Who will uplift them? Who will give peace and joy to them? इसलिए प्रिय भाई बहनों, दुनिया में गरीब लोग बहुत लोग हैं, उनका पास जाने वाला कौन है? उनको उद्धार करने वाला कौन है? उनको आधार देने वाला कौन है? उनको सच बताने वाला कौन है? उनको खड़ा करने वाला कौन है? उनको हर प्रकार तकलीफ में, दुख में, संकट में उनको सहायता करने वाला कोई है. That's why the Lord said, My name is Immanuel. इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने बताया, मेरा नाम इम्मानुएल. Why? He is with the people of the world in this world. वो परमेश्वर ने सारे दुनिया लोगों को साथ में रहते हैं. Let us see few things in the Bible. और परमेश्वर वचन में हम कुछ बातों को हम देख सकते हैं. If you read book of Matthew chapter 8, मत्ती सुसमाचार 8:6 में लिखते हैं, there you will find a man who was suffering with the leprosy and was staying on the mountain. ऐसा एक मनुष्य है जिसका कोढ़ी बीमार हुआ, वो अपना गांव से बाहर निकाल दिया, उन्होंने पहाड़ के ऊपर रहते. There is nobody for him. उनके लिए कोई नहीं है. Nobody is going to touch him. कोई उनको छूने वाला नहीं है. There is nobody who can call him to give food to him. कोई नहीं उनको बुला के और खाना खिलाने वाले. That was the situation of that man. ऐसी परिस्थिति उस आदमी को. At that time, the book of Matthew chapter 8 says, verse 1 to 5, if you read, Jesus was coming down from mountain of और ceremony. प्रभु यीशु मसीह और वो पहाड़ से नीचे आ रहा. Then the leprosy man was crying, Oh Lord, there is nobody for me. I am alone here. Nobody is there to give food me. Nobody is there to touch my life. I became alone. Every day I am shedding my tears. And there is nobody to comfort and console me, Father. उन्होंने बोलने लगा, हे परमेश्वर प्रभु, मेरे लिए कोई नहीं है. सब दुनिया मेरे को छोड़ दिया. मेरे पति, मेरे बच्चे लोग उसको छोड़ दिया. मैं एक कंगाल का आदमी बन गया. कोई नहीं मेरे लिए. Then the Lord said, I am there for you. I am an Emmanuel for you. I will touch you. I will heal you. And I will give you rest. And will send back to your home. And I will uphold you in the society. प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोले? मैं आपका साथ रहेगा. कोई चिंता नहीं करने का. मैं आपको छुआ करेगा, शंगाई करेगा और घर भेजेगा और समाज में आपको उन्नति एक ऊंचे स्थान में लेके जाएगा. Yes, the Lord Jesus Christ did heal. He was healed and he was filled with so much joy. He went back to his home and he the society also. प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह उनको बहुत अच्छी रीति से चुना है और उनको चुने के बाद में शंगाई हुआ और उसके बाद में उनको काफ़ी खुश मिला और छिड़े गया. That's why the Lord said, if there is nobody for you, I am there for you. That's why my name is Immanuel. If there is nobody, and I'll be with you. अगर भाई बहनों आपके लिए कोई नहीं होगा और परमेश्वर बोलने लगा, मैं आपका साथ रहेगा, मैं आपका साथ जीवित करूँगा, चिंता मत करो. That's why this is the second reason that we have to find out. And you will find, if you read book of John Gospel chapter 8, there was a young woman who was caught in adultery. यूहन्ना सुसमाचार में 8 में हम देख सकते हैं, वहाँ पे ऐसी परिस्थिति है, एक औरत ने और एक पाप में, व्यभिचार का पाप में पकड़ा गया. The people who are in that area are very, very self-righteous people. उस एरिया में रहने वाले अपना स्वधर्म में, स्वनीति में बहुत रीति से जीने वाला है. They went and caught her. वो लोग जाके उनको पकड़ा. And they brought to the Lord Jesus Christ. और वो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया. Now you see what happened. हम देख सकते हैं पे क्या हुआ.
they are asking the Lord Jesus Christ in the temple, and our law says if such a person is caught in the adultery, we have to stone them and we have to kill them. What you will say? Hey, प्रभु जी, आपने बोलने लगा मैं बहुत अच्छा उपदेशक हूँ, अभी बोलो व्यवस्था में क्या बोल रहा है? इनको पकड़ के अगर ऐसे पाप में पकड़ा और उनको पर अपने पत्थर से मार के उनको खत्म करना करके बोलना ना, आप क्या बोलेंगे? The Lord is very very loving. हमारा परमेश्वर बहुत ही प्रेम है. He is very very forgiving nature. हमारा परमेश्वर अपने को बहुत ही प्रकार का और क्षमा करने वाला है. He is very very wise. हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही ज्ञान है. Then the Lord said, if you read the John Gospel chapter 8 from verse 2 and the 10, and what the Lord said, very clearly he said, okay, if any one of you are not committing sin, you can put stone on her first, then other people can throw your stones. अगर आप में से एक भी पाप नहीं किया तो पहले उनको ऊपर एक पत्थर डालो, फिर इसमें बाकी सब लोग डालो. And what happened? Wonderful thing happened. और अद्भुत कार्य हुआ. सब लोग देखने लगा, अरे भाई मैं पाप किया, मैं कैसे उनको ऊपर पत्थर डालेगा? That's how all the people left the temple. इस रीति से जितना लोग आए उनको ऊपर मारने के लिए सब लोग चले गया. Now the Lord said, women, commit thy sin no more. ये स्त्री माता जी आज से लेकर फिर से उस पाप अब मत करो. I will be with you. I am Emmanuel for you. मैं आपका साथ रहता हूँ. मैं आपके लिए इम्मानुएल बनता हूँ. कोई नहीं, अगर आपके लिए कोई नहीं होगा, मैं आपके लिए. That's why, brothers and sisters, when you are in helpless condition, when you are judged by the people, when your people are trying to fault against you, when your people are trying to kill you, at that time the Lord says, I'll be there for you. Because my name is Emmanuel. Those who are in tears, those who are in troubles, for such people I came to this world. इसलिए प्रिय भाई बहनों, इस दुनिया में जो आस बहा रहा है कई प्रकार का और गुजर रहा है दुख में मुसीबत में, उनका साथ में रहता हूँ करके बोला है. So brothers and sisters, why the Lord name was given Emmanuel. And third instance of all, I will tell you. If you read the book of John Gospel chapter 11, and there you will find there's a family called Martha, Mary and Lazarus. हम देख सकते हैं यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय में एक परिवार है बेतनिया, एंड देयर वहाँ पे वो परिवार रहते. उनका एक मरियम, एक मार्था और उनका भाई लाजरस. Then what happened? The day came, the young man Lazarus died. एक दिन आया और जवान लड़का मर चुका है. They were in tears. वो लोग बहुत दुख में. The sisters were crying and crying. वो बहन लोग ने बहुत प्रकार का वो रोते लगा. Because there is no father for them. उनके लिए पिता नहीं. No mother for them. उनका नहीं. सभी लोग उनको छोड़ दिया. That's why, brothers and sisters, in such a situation, the whole family was filled with tears. The whole family was filled with so much comfortless. प्रिय भाई बहनों, ऐसी परिस्थिति में पूरा घर और पूरा लोग वहाँ पे दुख में भरा हुआ है. At that situation, the Lord was thinking about that family. That's why He is called Wonderful Counselor. तो हम देख सकते हैं परमेश्वर कुछ में लिखा है और वो हमारे लिए सोच विचार करने वाला है. If there is nobody who is not thinking about you, अगर आपका बारे में कोई भी नहीं
और उनका विचार नहीं करते होंगे, but the Lord is thinking about you. परमेश्वर ने आपका बारे में सोचना पड़ रहा है। He knows all your condition. आपका हर परिस्थिति देखता है। He knows your tears. आपका हर प्रकार का दुख आप देखता है। He knows all kinds of your weaknesses. हमारा जीवन में जो कमजोरी है हर बात को जानता है। He knows all our troubles and sufferings. हर बात संकट और मुसीबत को परमेश्वर जानता है। That's why, brothers and sisters, he went to the house of Mary Martha in Bethania. बेथनिया में मेरी मार्था उनका घर का पास में घर में प्रभु यीशु मसीह गया। For what? किसके लिए गया? Because he wanted to cheer out all what we call the problems, and he was to rub out all kinds of the tears. उनका सारे प्रकार का दुख हटाने के लिए और उनको सारे प्रकार के दुख को निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह गया। उन्होंने क्या किया वहाँ जाके? What the Lord said there, what he did there, he went to sepulchre there, और इसके बाद में बुलाया, Lazarus, come out of the grave. प्रभु यीशु मसीह जहाँ लाजरस को उन्होंने दफन कर दिया, 3 दिन हो गया, 4 दिन, और उस समय जाकर परमेश्वर ने एक शब्द बोले, बाहर आ जाओ। जो आदमी 3 दिन के बाद में मर चुका है वो उठ के जीवन पाके बाहर आ गया। My dear brothers and sisters, the Lord is not a small child Christmas. He is the wonderful counselor. He is Almighty God. He is everlasting Father, and He is the Prince of Peace. According to Isaiah chapter 9 and verse 14 says, He is a mighty God. He proved Himself as a God, because except God, there is nobody who can bring life to the people. इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम देख सकते हैं अगर परमेश्वर को छोड़कर मरने के बाद में किसी आदमी को जान देने के लिए किसी के पास में शक्ति नहीं है, तो इसलिए परमेश्वर ने और इस दुनिया में पैदा हुआ, वो परमेश्वर को दी। And that's why by one word the life came to Lazarus. एक शब्द से जो मर चुका लाजरस को और शक्ति और जीवन पाया है। Now you tell me, अब आप बोल सकते हैं, मेरी माता, you are thinking that there is nobody for you. ये अम्मा जी, माता जी, आप लोग सोच रहे हमारे लिए कोई नहीं है, but I am an Emmanuel for you. मैं आपके लिए इम्मानुएल, आपका साथ रहता हूँ, आपको शक्ति देने के लिए, हर प्रकार का संकट को, मुसीबत को, हर प्रकार का बात को पूरा छुटकारा करने के लिए मैं आया हूँ। इसलिए प्रिय भाई बहनों, तो हम देख सकते परमेश्वर का शक्ति वहाँ पे है। इसलिए कई लोग सोचते क्रिसमस में कितना दिन से हम देखेंगे, एक बच्चे का समान कितना दिन देखेंगे हम। हाउ लॉन्ग यू विल सी लाइक ए स्मॉल चाइल्ड, मस्ट सी हिम लाइक ए ऑलमाइटी गॉड। हम जैसा बच्चे का समान को नहीं देखना है, परमेश्वर का शक्तिमान सा हम देखना है, तभी तो आपको मिल सकता। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर ने पैदा हुआ दुनिया में। His name is Emmanuel because His God is with the people who are in tears, who are in troubles, who are in difficulties, who are in such kind of situations. The Lord will go and He will deliver them from all such kinds. इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इसलिए पैदा हुआ, जो लोग कष्ट में, मुसीबत में, दुख में, हर प्रकार का बीमार में, हर प्रकार का दुष्टात्मा में, और जो लोग बंदी हुआ उनको छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में पैदा हुआ। और तीसरा बात हम देख सकते हैं, लूक सुसमाचार में बुक ऑफ लूक and chapter 4, Luke Gospel, chapter 4, there we will find why the Lord came and why the Lord was born in this world. What is the purpose behind it? हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों पैदा हुआ।
And Luke Gospel, chapter 4 and verse 18 says, what it is written, I came down to this world to preach the gospel to the poor people. This is the third thing why the Lord came to this world. What is the meaning of gospel? Gospel means delivering a person from the sinful life into the holy life, from the bad life into the good life. प्रिय भाई बहनों, और सुसमाचार का मतलब जो आदमी ने बुरी रीति सब दुनिया में और उस आदमी को निकालकर अच्छा जीवन देने के लिए, पवित्र जीवन देने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह उनको सुसमाचार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया. That's why if you read the book of Matthew chapter 5 and verse 1, chapter 6 and chapter 7, मत्ती सुसमाचार 5 और 6, 7 अगर आपने पढ़े तो वंडरफुल प्रीचिंग, अद्भुत रीति से उन्होंने उपदेश किया लोगों को. बिकॉज ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइव्स आर चेंज्ड. प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार से उनका जो उन्होंने जो शिक्षा से बहुत लोग ने अपना जीवन को बदल दिया. मेनी पीपल फाउंड द वे टू हेवन. बहुत लोग ने स्वर्ग का जाने के लिए रास्ता उनको मिल गया. और not only that, the Lord taught to them how to live in this world with a loving nature, with a holy life, and with all the people, how to be with all the society. All such things he taught to the disciples and others. इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आके एक इंसान दुनिया में कैसा रहना है, लोगों को साथ में कैसा बात करना है, कैसा अपना जीवन को बिताना है, ये सारी बात करने के लिए उन्होंने दुनिया में आया. That means, don't you think that there are no teachers? अगर आप नहीं इस तरह से भी सोच सकते, दूसरे लोग नहीं कहा. No, the only Jesus Christ who preached and practiced. इस बात का ध्यान करिए, इस दुनिया में जितना लोग भी प्रीचर्स आया, पास्टर्स आया, फादर्स आया, एनी काइंड ऑफ पर्सन, कोई भी जो बोलता है लेकिन करने में फेल हो गया. एनीबडी, सभी लोग बोलता है लेकिन कामों में फेल हो गया. लेकिन but the Lord said, whatever he preached and he practiced, उन्होंने जो बताया अपना जीवन में दिखा दिया. That's why, brothers and sisters, this evening time, when you are listening this message, why don't you receive his message in your life, so that you will be filled with the joy and salvation. अगर आपने इस बात को पर ध्यान करेगा, आपको परमेश्वर ही करेगा. और एक बात हम देख सकते हैं, और जो अंडर the people who are in the jail and different kinds of bondages, they will be delivered. The second reason that we will find here, the Lord Jesus Christ came, he born in this world to deliver the bondage of all kinds of people. What are these bondages? इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? क्योंकि जितना लोगों को बांधे हो गया हर प्रकार का, और उस जो वो बंधन को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ. What are these bondages? ये जो बंधन क्या होता है? So there are so many people who are the drunkards, who are the smokers, who are the synagogues, who are the adulterers, who are the idol worshippers, and all kinds of robbers and thieves. हम देख सकते हैं इस दुनिया में कई लोग और दारू पीने में और सिगरेट पीने में हर प्रकार का और व्यभिचार काम करने में, हर प्रकार का मूर्ति पूजा करने में, हर प्रकार का दुष्ट का काम करने में, और कई प्रकार का बंधन में वो बंदी हो गया. Who can deliver them? उनको कौन छुड़ा सकता है? Nobody has that power. किसी के पास में वो शक्ति नहीं है. There are so many gods came to this world, but they themselves were bounded by those things. बहुत लोग परमेश्वर दुनिया में आया, लेकिन वो सब लोगों को वो सारे बंधन में वो लोग खुद ही फंस गया. But the Lord, he conquered his own body
and the whole world, even death, even Satan also. प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर को, इस दुनिया को और शैतान को और हर प्रकार का बातों को उन्होंने और उसका ऊपर विजय पाया. That's why he has that power to deliver us. इसलिए वो बंधन उनको छोड़ने के लिए परमेश्वर आया. Let us see the word of God. परमेश्वर वचन में देखेंगे. If you read book of Mark Gospel chapter 5 from verse 1 to 15 we will read. There a young man was possessed by the evil spirits. हम देख सकते एक आदमी, जो आदमी और भयंकर रूप से और दुष्टात्मा में पकड़ा गया. He was suffering and suffering. वो बहुत प्रकार का, वो उनका जीवन में बहुत प्रकार का ये होते जा रहा. Nobody helped him. उनका कोई कुछ नहीं कर सके. The Lord said, the Lord went there and he commanded the evil spirits and he delivered them from the powers of that evil spirit. प्रभु यीशु मसीह वहाँ गया, उनको वहाँ से बाहर निकल के लेकर आया. That's why he came down to this world to deliver them from all kinds of that sins. My brothers and sisters, not only that, still there are so many things are there, but the time is very less. Now, before I am closing, just I want to tell you one thing. If you read the book of Mark Gospel, chapter 10, he came to this world to serve the people. That's why he served so many people. प्रभु यीशु मसीह दुनिया इसलिए आया, उनको सेवा, सब लोगों को सेवा करने के लिए आया. Many people, other people, they are expecting other people should serve them. आज दुनिया में देख सकते हैं दूसरे लोग हमको सेवा करना है. But the Lord did not, he never expected that. प्रभु यीशु मसीह कभी भी इस रीति से नहीं किया. So that's why, brothers and sisters, still there are so many things are there, but why I'm telling, he was born to save you from your sinful life. He was born to be with you so that you should not go again to that sinful life. And he was born to deliver all kinds of the evil spirits from this world. He will born to be with you when you are alone, when you are helpless condition. इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया, आपका साथ में रहने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए, आपका संगति करने के लिए, आपका हर प्रकार की बात को देने के लिए आया. That's why finally he said in John Gospel chapter 14, and I came to this world to take all of you to the kingdom of God. मैं इसलिए दुनिया में आया आप सब लोगों को और स्वर्ग में ले जाने के लिए. The heaven is the holy one. स्वर्ग जो है वो पवित्र है और sinful people cannot enter in that. और पाप का जो लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, and unholy people cannot enter in that. और अशुद्ध लोग वहाँ पे नहीं जा सकते. That's why and the Lord Jesus Christ came to take every one of you and me and all the people to heaven. हम सब लोगों को लेकर परमेश्वर जाने के लिए दुनिया में पैदा हुआ. If you have understand this message, now you kindly take this decision. O Lord Jesus Christ, you born in this world for my sake, for my sin. For my sin you died on the cross of Calvary. हे परमेश्वर पिता, मेरे लिए दुनिया में आया, मेरे लिए आपने स्वर्ग में अपना जीवन दिया. You shed his precious blood, अपना खून बहाया. He was bruised on the cross. वो परमेश्वर अपना और हर प्रकार का घायल हुआ. He cried and cried. वो रोते 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 आया. For your sake and for my sake. Accept Lord Jesus Christ as your personal Savior today. If He borns in the Bethlehem, there is no use. If He borns in your heart will be blessed. Your heart will be filled with joy. Your heart will be filled with peace. Your heart will be filled with blessings. यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आपका जीवन में शांति और आनंद उद्धार पाएगा, खुशी पाएगा. There are so many mysteries are there. God gives another time, we will meditate. अगर परमेश्वर इच्छा हो तो हम दूसरे बार उसको प्रदान करेगा. Shall we pray? यदि हम प्रार्थना करेगा. Loving Father, we thank you for this evening message.
प्रेमी पिता, इस शाम को जो समय आपने दिया है और ये जो संदेश आपने दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। एंड दोज आर लिसनिंग दिस मैसेज फ्रॉम अब्रॉड एंड ऑल्सो इन इंडिया एंड अदर प्लेसेस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो लोग परमेश्वर को वचन और विदेश में और यहाँ पे अनेक और भिन्न भिन्न रूप से सुन रहा है, उन सबको साथ को आपने आशीर्वाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। दोज आर सिंफुल कंडीशन दे मे बी डिलीवर्ड, वो लोग पाप ने किया है, पाप उनको दूर करिए परमेश्वर पिता। और जो लोग अलोन है और उनको साथ में रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। लविंग हेवनली फादर, वी थैंक यू लॉर्ड, यू केम टू दिस वर्ल्ड to comfort the people, to console the people। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया हमारा साथ रहने के लिए, हमको उद्धार देने के लिए, हमको तसल्ली देने के लिए। That's why praise and thank you. Commit every one of you to your loving hands, care and protection. We pray in the name of Lord Jesus our Savior। हमारा प्रभु यीशु नाम से हर बात को तेरे हाथ में सौंप देते हुए धन्यवाद का साथ यीशु नाम से मांगता हम, सुन और ग्रहण कर। आमीन। Well, brothers and sisters, we greet you all once again. The happy Christmas to all our dear brothers and sisters once again। प्रिय भाई बहनों, और एक बार आप सबको मैं जय मसीह का और क्रिसमस का आपको और शुभ और हमको दे रहा है। और काइंडली प्रे फॉर अस एंड विल बी प्रे फॉर यू। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते रहिए। और सबको जय मसीह। प्रेज लॉर्ड टू ऑल ऑफ यू।